to be a part of this screen. हम सब ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मनमानियां की. कुछ मनमानियां अगर सही हो गई तो हमें सक्सेस मिल जाती. और कुछ मनमानियां सर, he is mainly known for his the blockbuster movie Classmates. It was a big blockbuster movie in Marathi cinema. Now the perfect eye, the eye of a cinematographer, Mr. Milind Jog. Now I must request the backbone of the film, the writer Param Kalra sir. And the screenplay has written by Param Kalra sir, Amjad Khan, and Ajinkya Kishore. Ajinkya Kishore has also written the dialogues of the film, and he is an alumni of Whistling Woods International. And now the costume has been designed by Deepika and Anirudh Singh. Are they there? And now let me present the star cast of the film, the most stunning, gorgeous, beautiful Shenu Parekh, the fame of Is Pyar Ko Main Kya Naam Do and Dil Bole Oberoi. And the present and the future star, none other than Arshay Rawat. He is also an alumni of Whistling Wood International. And I must call the Abu Kumar Jain sir. He is the distributor in Delhi, Punjab and UP circuit. And he is also the owner of Hansuk Films. Rahul, please come on the stage. Abhinav and Rahul, please come on the stage. All the actors, please come on the stage. Start the Q&A session. की जर्नी की फिल्म है, उसमें म्यूज़िक बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो म्यूज़िक के लिए अजय वाज, ही इज़ अ यंग म्यूज़िक डायरेक्टर. आई थिंक इसकी उनकी पहली हिंदी फिल्म है एज अ डेब्यू. एंड एक ट्रॉय ऑरिफ ने भी 2-3 गाने की है. सो वी हैव अ मिक्स ऑफ यंग टैलेंट दैट इज़ मे बी शोकेसिंग देमसेल्व्स इन हिंदी इंडस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम. सो काफ़ी डेब्यूटेंट्स ने मिलकर बनाई हुई वैसी फिल्म है. बट आई थिंक उसका सबसे, एज ही सेड, सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये थे कि the script is something that excited all of us, and that is exactly why we went ahead and made it. So one thing at a time. अभी जैसे ज़्यादा रिवील करते जाएंगे what is the film about, वो ज़्यादा रिवील तभी होगा. But yes, it's a young film, म्यूजिकल फिल्म है, एक यंग एज ग्रुप को आइडेंटिफाई होने वाली फिल्म है. इट इज़ अबाउट देम एंड देयर स्टोरी. सो आई एम श्योर कि पब्लिक को उस एज ग्रुप को तो ज़्यादा कनेक्ट होगी. एंड व्हेन दे वॉच द फिल्म, उनकी और उनकी फैमिलीज़ की और उनकी एक साथ एक जर्नी की, उनकी बॉन्ड की ये स्टोरी है. तो आई एम वेरी श्योर कि एक बार ये फिल्म के ट्रेलर और उसके आगे के मटेरियल के थ्रू ज़्यादा एसोसिएट होती जाएगी फिल्म. लोगों को फिल्म के जिस्ट ज़्यादा क्लियर होती जाएगी, बिकॉज द स्टोरीज इन सच अ वे दैट वी डोंट वांट टू रिवील अ लॉट. So I really hope you like the trailer and teaser, and looking forward to showcasing the trailer soon. Thank you. Your mind. I'm getting used to this. Like I am trying to get used to this. Okay. My next question is from Shanu. How different is working in television industry and working in Oh, cinema? totally. We don't have to do overtime like there. We do. अभी मैं भाग के आ रही हूँ shoot से, and the kind of exposure we get in films is different, where we get to perform a lot of shades that usually TV में कहीं छूट जाता है कभी कभार. वो भी हम कोशिश करते हैं कि you know उस span में portray कर सके. But film has been a different experience for me, and I look forward to doing more films now. इसका रेफरेंस आया था, and I belong to that industry. That is where I've started my career. When this film came to me, मुझे सबसे बड़ी I think important चीज़ इसको एक्सेप्ट करने के पीछे ये थी कि सतीश जी का फ्रॉम डे वन एंड द एंटायर टीम का डे वन से अप्रोच ये था
कि वी विल डू व्हाट इज़ राइट फॉर दिस फिल्म, फॉर द स्टोरी। इसको जस्ट कमर्शियल करनी है या इसको एक सर्टन इंडस्ट्री नॉर्म्स में बिठानी है, इसलिए ये सब चीज़ें करेंगे तो ये चलेगी, ऐसे लॉजिक से इन्होंने अप्रोच नहीं की थी फिल्म। दे हैड जेन्युइनली वांटेड टू मेक अ फिल्म एंड टेल अ गुड स्टोरी। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल वी हैव ट्राइड टू डू। एंड ऐसी कम बार होता है कि आप फिल्म बनाने के लिए निकलते हो और आप यू विथ व्हाट कन्विक्शन यू स्टार्टेड। तो इस फिल्म की पूरी जर्नी में आई थिंक ऑल ऑफ अस, राइट फ्रॉम द म्यूजिक डायरेक्टर्स टू एक्टर्स टू एवरीबडी, द राइटर्स, हमने सब ने हमारे हिसाब से जो हमें सही लगा फिल्म के लिए वो किया। एंड दे हैव सपोर्टेड, द प्रोड्यूसर्स हैव सपोर्टेड अस ऑल अराउंड। सो आई थिंक व्हेन दिस हैपेंस एक अच्छी फिल्म बनती है एंड उसमें से वट एवर वी हैव कम अप विथ इट इज़ प्योरली टू टेल अ गुड स्टोरी। तो आई थिंक दैट विल कनेक्ट टू यू मोर and that in any language when you make a film which is purely on the conviction of the script, it works better. So I think that is the strong point of the film and वही I think चीज़ सबसे बड़ी इसकी strength है। तो I hope you like the story that we have come up with and we have told in the best possible way we could think of. Thanks. And now I will like Thanks. to hand over the mic to the producer, the owner of Jump. अदा करता हूँ कि जितनी मीडिया के लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ होता नहीं है। छोटी सी मूवी को कैसे बड़ा किया जाता है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। और हमारी मूवी, जब मैं इस फिल्म में जुड़ा हुआ था इनके साथ, तो कई लोगों ने बोला कि आप तो बहुत पुराने हो यार, 50-60 से आप लोग एग्जीबिशन चला रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, मेरे फादर मेरे दादाजी लोग करते हैं। तो मैंने वो भी यही कहते हैं कि छोटी चीज़ को आप अगर उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो और उसको बड़ा करना है तो सबसे पहले सब लोगों को साथ में लेके चलना चाहिए। ये हमारा पहला इवेंट है। जितने यहाँ पे मीडिया के लोग आए तो तहे दिल से पहले तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने हमें समय दिया। आपके बिना ये मूवी बड़ी नहीं हो सकती है। और उसके बाद जनरली मैंने देखा है कि लोग डायरेक्टरों की, प्रोड्यूसरों की, राइटरों की बहुत तारीफ करते हैं, मगर लोग जनरली ये भूल जाते हैं कि जो लोग सिनेमा घर तक पिक्चरें पहुँचाते हैं सबसे बड़ा योगदान उनका होना है। तो हमारे मुंबई सर्किट के राजेश भाई को मैं बुलाना चाहूँगा। राजेश सजानी जी मुंबई सर्किट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और अपने पंजाब में अबू जैन जी कर रहे हैं। अबू जैन को बुलाना चाहूँगा मैं। इनका बहुत बड़ा योगदान होता है क्योंकि इनके बिना पिक्चर थिएटर में पहुँचती नहीं है। और किस तरह से प्रॉपर अप्रोच से थिएटर में पिक्चर को पहुँचाना है और कितनी उसकी मार्केटिंग करनी है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और मेरी खुशनसीबी है कि ये सब लोग हमारी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि 12 मई को जब ये पिक्चर आए तो हमारी यही उम्मीद रहेगी कि आप लोगों से भी कि आप लोगों इसको पूरा सपोर्ट कीजिए और खुद भी सिनेमा घर पे जाइए, अपने साथ 10-12 दोस्तों को ले जाइए और दबा दबा के टिकट खरीदिए। क्योंकि अगर आप दबा दबा के टिकट खरीदोगे तो उसका जो पैसा जनरेट होगा, हम जैसे लोग जो बाहर से आते हैं फिल्में बनाते हैं, कोशिश करेंगे कि दोबारा और फिल्में बनाएं। थैंक यू सो मच। और सतीश जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे भाई हैं और जिनके साथ हमने सफ़र शुरू किया है और उनके सपोर्ट से ये पूरी मूवी बनी है। और आप लोगों को मुझे पूरी उम्मीद है। मैं सिनेमा काफ़ी सालों से चला रहा हूँ। हर दिन हम फ्राइडे को फिल्में चलाते हैं, उतारते हैं। बहुत फिल्में देखी हैं मैंने बचपन से लेकर आज तक, बहुत फिल्मों में इन्वॉल्व भी रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये पिक्चर कुछ करेगी और ज़रूर करेगी। थैंक यू। अब मैं चाहूँगा हेलो, मैं फर्स्टली इनके बारे में आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दूँ। स्पेशल दिल्ली से हमारे लिए आए। आप एक टाइम ऐसा होता था, 2 डेकेड से ये सिनेमा घर चला रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। चाहे महेश भट्ट की फिल्म हो, अनिल शर्मा की फिल्म हो, कोई भी बड़ी बड़ी फिल्में हो, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की हैं, खरीदी भी हैं। काफ़ी वेल नोन डिस्ट्रीब्यूटर है दिल्ली सर्किट पंजाब के। तो 2 शब्द मैं चाहूँगा ये भी हमारे बोल। मीडिया का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और नए आर्टिस्ट हैं, इनके लिए दुआ करनी बहुत ज़रूरी है और ये पिक्चर बहुत अच्छी हिट होनी चाहिए। हमारा अपनी जो कोशिश कर सकते हैं वो हम करेंगे। और लास्टली मैं थोड़ा थैंक्स उनके नाम मैं जरूर मेंशन करूंगा जो हमारे साथ एग्जीबिशन में पहले से ही जुड़े हुए। एसआरएस सिनेमा वाले काफ़ी बड़ी चेन चलाते हैं, वो पहले दिन से मेरे साथ इन्वॉल्व हैं इस पिक्चर में। मेरे खुद के थिएटर, नटराज थिएटर, प्रभात थिएटर, गोलचा थिएटर और काफ़ी सारे के सिनेमा, उनका भी मैं तहे दिल से, सिल्वर सिटी सिनेमा, कि उनके सपोर्ट से ये पिक्चर अच्छी लगेगी आप लोगों को। थैंक यू सो मच। नहीं, सीरियस इशू है बट
थॉट हम इन अ फन वे उसे पोर्ट्रे कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से एंटरटेनर बनाया है हमने. इट्स नॉट अ वेरी सीरियस फिल्म. इट्स कॉल्ड थोड़ी थोड़ी मनमानियाँ. इट्स यूथ बेस्ड फिल्म, यंगस्टर्स के लिए बनी है कि कैसे इस उम्र में यंगस्टर्स मनमानी करना चाहते हैं एंड दे माइट गेट मिसगाइडेड बाय वेयर दे आर गोइंग टू. तो दो कैरेक्टर्स जो नेहा और सिद्धार्थ है, दो किरदार एकदम अलग है कैसे अपनी आइडियोलॉजीज़ में और कैसे वो अपनी मनमानी को करेक्ट करते हैं और वो साथ साथ मनमानी करते भी है. इट्स अबाउट दैट एंड द कॉमन कनेक्शन बिटवीन बोथ द कैरेक्टर्स इज़ म्यूज़िक. इट्स अ म्यूजिकल बेसिकली एंड थ्रू दैट वी आर ऑल्सो गिविंग सोशल मैसेज. नेहा से मैं रिजेंबल करती हूँ क्योंकि वो एक सिंगर है और my first step towards this industry was singing only. I had participated in Indian Idol. तो मेरे ख्याल से म्यूज़िक एक चीज़ है जो नेहा और शेनू के बीच में बहुत कॉमन है. You have been part of a small state, big state पे काम करने का कैसा है? बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई वुड जस्ट वांट टू से कि ये इतनी बड़ी कामयाबी अगर मुझे मिली है तो वो स्मॉल स्क्रीन की वजह से मिली है. सिंस आई हैड अ नेम ऑलरेडी इन टीवी, I got this offer and I'm thankful to my TV industry which I'm still pursuing right now कि मुझे ये इतनी अच्छी फिल्म करने मिली and I'm glad कि मैं एक मीनिंगफुल फिल्म कर रही हूँ. मेरे ख्याल से यंगस्टर्स के लिए ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी फिल्म क्योंकि म्यूज़िक है सबसे बड़ी USP हमारी फिल्म की. वी हैव 6 songs and they're beautifully composed and sung by our respective singers. So शालमली खोलगड़े and निखिल D'Souza, they have done the playback singing. तो मेरे ख्याल से और सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, रॉक सॉन्ग्स हैं, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी यंगस्टर्स को एंड हर एज फैक्टर को अट्रैक्ट करेगी फिल्म थ्रू आवर मैसेज विच इज़ अबाउट अगेन यंगस्टर्स, यू नो, सो द पेरेंट्स कैन कोरिलेट विद देयर किड्स एंड ऑल. सो या कितना रोमांचक रहा आपका सीरियल से लेके? इट वॉज ऑल मैजिकल आई मस्ट से क्योंकि मेरा शो जस्ट ख़त्म हुआ था एंड द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माई वे वॉज दिस. So there was no looking back और मैंने सीधे हाँ बोल दिया था because my team was good, my director was good and I must say मैंने classmates देखी थी उस वक्त तो मुझे कोई डाउट नहीं था कि मैं ये फिल्म नहीं करूँगी. हाँ जी. सब्जेक्ट इस फिल्म का उसके बारे में बताना चाहेंगे क्या सब्जेक्ट क्या है? सर इट्स अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी ऑफ अ गाय जो कॉलेज गोइंग है एंड काफ़ी चीज़ें होती है उसकी ज़िंदगी में जो उसकी आगे की जर्नी बदल देती है एंड दिस इज़ व्हाट द स्टोरी इज़ अबाउट. इट्स अ म्यूजिकल ड्रामा. ये भी जानना चाहूँगा विस्लिंग से आपने ट्रेनिंग लिया जी. इंस्टीट्यूट से क्या फ़ायदा हुआ वहाँ से ट्रेनिंग लेने का? व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग? सर काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए. आई थिंक एवरी एक्टर सिंस एक्टिंग इज़ अ क्राफ्ट एवरी एक्टर मस्ट होन दैट क्राफ्ट. उनको सीखना चाहिए वो जो भी सीख सकते हैं. मेरे लिए आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि मुझे विस्लिंग वुड्स में पढ़ाई करने का मौका मिला. इट मेड थिंग्स अ लॉट मोर ईजियर फॉर मी. जब मैं शूट कर रहा था अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ये मेरी पहली फिल्म है, एटलीस्ट जैसे शूट होता है सेट पे जैसे चीज़ें होती है दैट वर मेड वेरी ईजी बिकॉज आई हैड स्टडीड एक्टिंग. शीनू हैव बीन वर्किंग इन अ स्मॉल स्क्रीन के साथ वो स्टार्ट के साथ आपका कैसा मतलब शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस. सिंस उन्होंने टीवी किया उनको आदत है बहुत जल्दी जल्दी सारे टिक्स करने की, तो उनसे वो सबसे पहले सीखने को मिला विच वॉज वेरी नाइस एंड इट वॉज ग्रेट वर्किंग विद हर. ऐसा कुछ है नहीं कि मैं किसी स्पेसिफिक तरह का रोल करना चाहता हूँ. कभी ना कभी मुझे एक्शन फिल्म ज़रूर करनी है, वो मेरा है अंदर एक मर्जी इच्छा. अभी आई एम जस्ट डूइंग सम शॉर्ट फिल्म्स और मैं वेट कर रहा हूँ ये फिल्म रिलीज़ हो जाए. इसके रिलीज़ के हिसाब से आई विल प्रॉब्ली प्लान अहेड कि क्या करना है मुझे. थैंक यू.
मैं सबसे पहले थोड़ी थोड़ी सी मनमानियाँ की यूनिट, उनके जो कलाकार हैं, नए लड़के नई लड़कियाँ दोनों, उनके डायरेक्टर मिस्टर आदित्य, उनके प्रोड्यूसर साहब, सबको मैं मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। पहली फिल्म है इनकी, पहला प्रयास है, अच्छा प्रयास है और आप सब लोगों से अनुरोध है इस पहली फिल्म के पहले प्रयास को आप लोग थोड़ी मनमानियाँ को जरा ज़्यादा सा प्यार दें। सर आपके प्रोफेशनल में क्या चला, कौन सी फिल्म में काम कर रहे हैं? अभी मेरी फिल्म मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिसका नाम है जीनियस, जहाँ मैं अपने बेटे उत्कर्ष को लॉन्च कर रहा हूँ। जी, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट क्या है सर? सब्जेक्ट की बात करेंगे ना, अभी थोड़ी मनमानियाँ। बेटा ऐसा है, फिल्म सही फिल्म बनाने में थोड़ा समय लगता है। हम लोग 19 महीने लग गए हमें स्क्रिप्ट ख़त्म करने में, अब जाके स्क्रिप्ट कंप्लीट हुई है। अब हमारी हीरोइन अभी तक फाइनल हुई नहीं है, कुछ दिनों में हो जाएगी। एक बार हीरोइन फाइनल हो जाती है उसके बाद शूटिंग शुरू कर देंगे। शूटिंग में कितना टाइम लगता है?